आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट्स में। आपको खुद भी पता है कि मार्केट्स अच्छी चल रही है तो रिटर्न्स अच्छे हैं, सब अच्छा है मार्केट्स में। गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 3 4 साल इक्विटी मार्केट्स के लिए कैसे रहने चाहिए। Here are top 5 reasons what we feel should be the drivers of the markets in the coming few years. Number one, इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रोज है वो प्रॉबेबली पिछले इंडिया के कंप्लीट हिस्ट्री में सबसे बेस्ट पॉसिबल है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से हाई हैं बट मॉडरेट हो जाएंगे, गुड अर्निंग्स फॉर कंपनीज, गुड प्रॉफिट्स फॉर कंपनीज, न्यू सेटअप्स हैपनिंग इन इंडिया, न्यू सेटअप्स कमिंग टू इंडिया एंड सेटिंग अप देयर बिजनेसेस इन इंडिया, इंडिया रीचिंग द टॉप 5 in terms of GDP. So all the macros of India are superb. Along with the macros, if you look at the infrastructure development, that's superb. Number two, India, apart from the great macros, there is a world of liquidity which is coming into India and which has to come into India. So the second reason, World MSCI Index, India पिछले 10 सालों में 8% की allocation से 18% की allocation पे आ गया। और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें कुछ फंड्स, काफी फंड्स ने 18% के आसपास कर दी है, काफी फंड्स ने अभी भी 18% की एलोकेशन पे नहीं रीच करे। सो ये सब फंड्स जो कि इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं जो सिर्फ वर्ल्ड एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जब ये अपनी एलोकेशन इंडिया में बढ़ाएंगे, all this money has to continuously come to India, right? So that's number two. Number three, we are in an interest rate cut kind of a cycle right now, world over, not just in India, world over. If we are in a interest rate cut kind of a scenario, what that means is interest rate cuts are always done to increase liquidity in the system. So हमेशा interest rates cut इसलिए होते हैं ताकि हम liquidity बढ़ा सके systems में। So हमेशा FIIs का पैसा, DIIs का पैसा जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, हमेशा इक्विटी मार्केट्स में स्पिल ओवर होता है। So third reason is that we are in an interest rate cut kind of a scenario, so the liquidity is expected to come into India. Number four, apart from the world MSCI index and also the interest rate cuts, there are specific funds which have a mandate to invest into India which are getting launched. So Japan ने अभी बहुत रिसेंटली एक इंडिया फंड लॉन्च किया है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड है, जो कि सब इंडियन मार्केट्स में एलोकेट होना है। इसका जो मैंडेट है वो है 60% लार्ज कैप, 40% मिड कैप। ये एक जापान का फंड है विद एन इंडिया स्पेसिफिक मैंडेट, सो मोर लिक्विडिटी टू इंडिया। नंबर फोर, if you look at the profitability, if you look at the earnings of the companies, of the stocks that are listed, the earnings are probably in my experience, these are the best earnings that have been seen so far from the stock markets and from the company's perspective. They're in the mid-teens, so very nice earnings. Always remember, stock markets are driven by earnings, liquidity and sentiments. So the first reason था कि इंडिया के मैक्रोज अच्छे हैं, वो एक sentiments driven reason हो गया। सेकेंड और थर्ड रीजन लिक्विडिटी बेस्ड रीजन हो गया। फोर्थ जो रीजन है वो एक अर्निंग्स बेस्ड या प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड रीजन, राइट। फिफ्थ, अभी फिफ्थ पे थोड़ा सा डिबेट है क्योंकि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, पर एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, आप सबको पता है, मई में लोकसभा इलेक्शन ड्यू है। प्रोबेबिलिटीज आर दैट देयर विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट इन इंडिया, right? Not getting into a political discussion over here. हम political discussion बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी। हम बस ये कह रहे हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की उम्मीद है सेंटर पे, और वो स्टेबल गवर्नमेंट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, even more positive for the foreign investors to invest into India because they get stability of the next 5 years in terms of policies, in terms of governance. So these are the top 5 reasons where we feel that the next 2-3 years should be really good for the Indian equity markets. अभी pros तो मैंने आपको बता दिए, इसके cons क्या है। So cons में you have to look at the budget. जो नई गवर्नमेंट का बजट आएगा जून और जुलाई में, that has to be looked at. Oil prices have to be looked at. They've been decently going up, so another probability of risk. So always remember, markets हमेशा correct होंगी for something which we don't know today, right? So today all the factors look good for the markets to perform well, but हमेशा आप देखेंगे कि markets हमेशा नीचे जाती है जब कोई भी factor ऐसा play out करता है जो हमने predict नहीं किया था या हमें पता नहीं था।
So markets always fall because of the unknown. कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, जनवरी 2020 में किसी को नहीं पता था मार्च में लॉकडाउन हो जाएगा। रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, जनवरी 2022 में किसी को नहीं पता था कि फरवरी मार्च में रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा। The markets will fall because of something which is unknown. And one more important thing, valuations are a little stretched right now, right? वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई है, लार्ज कैप की भी, मिड कैप की भी, स्मॉल कैप की। बबल नहीं है, वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन हमेशा हाई होती है किसी भी मार्केट में जहाँ पे मैक्रोज बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे फॉरेन इनफ्लोज आता रहता है, जो कि इंडिया के साथ है। तो थोड़ा बहुत मार्केट एक्सपेंसिव होना बुरी बात नहीं है। और एक बहुत फेमस सेइंग है इन्वेस्टमेंट्स में कि इफ वैल्यूएशन इज द ओनली प्रॉब्लम देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, right? So that's what we feel. That's a small update about the markets of what we feel about the next 2-3 years going forward. This is our analysis. This is not an advice. Please do your analysis on your own. If this video helps you in your analysis, that will be the objective of this video. But अपना decision, अपना जो investment है, अपने analysis और अपने risk appetite test out करने के बाद ही करें. Right? So thank you for watching that video. Do let us know how do you like that video. Do let us know अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन आपके सामने ही है, सब्सक्राइब करिए। दिस इज मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।